Hello students, good morning. Welcome to Essay Solving classes. Student, we were reading chapter 3, subject and predicate of our English language book Cornerstone. In our last video, our topic was exercise A. Answer these questions in complete sentences which is page number 11 of chapter 3. So student, we have read and solved this exercise A, which is page number 11 in our Fair English Language notebook in our last video. And students, today's our topic is prefixes and suffixes. So students, today we will read about prefixes and suffixes, and included this topic we will read and solve exercise O and A, which is page number 12 and 13. And after that we will read and solve exercise A, answer the following questions of the chapter 3 in our Fair English Language notebook in our today's class. Okay, so all students pay special attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read a very important topic, prefix and suffix, which is a really very important topic of our English language. Okay, so all students look at the page number 12. Okay, let's see. Students, our topic is prefixes and suffixes. Prefixes its mean होता है उपसर्ग and means और. Suffixes its mean प्रत्यय. Prefixes and suffixes its mean उपसर्ग और प्रत्यय. Okay, so today we will discuss about prefixes and suffixes. Let's say exercise O. Look at these words. Look at means देखिए. These means in, words means शब्दों. Look at these words. It's mean इन शब्दों को देखिए. Okay, कैन यू फाइंड अ स्मॉलर वर्ड इन ईच ऑफ दम. इट्स मीन क्या आप उनमें से प्रत्येक में एक छोटा शब्द ढूंढ सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. नेक्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए सॉल्व करके दिया हुआ है. ओके, एक वर्ड में एक स्मॉलर वर्ड फाइंड आउट करके दिया हुआ है. लेट्स सी फर्स्ट नंबर वर्ड. योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज डिसलाइक. ओके, सो वी कैन से इन दिस वर्ड डिसलाइक दैट स्मॉलर वर्ड इज लाइक. ओके, LIKE लाइक. लाइक मीन्स पसंद करना, डिसलाइक मीन्स ना पसंद करना. क्लियर? Let's see, your next word is kingdom. So student, we can see in this word kingdom, the smaller word is king. KING. King means Raja. Okay, so student, underline this word king. Okay, in this word kingdom, the smaller word is king. Okay, let's see next word. Your next word is impossible. It's mean asambhav. Okay, so same we can see in this word impossible, the smaller word is possible. Okay, so student, underline below this word possible. Okay, impossible means asambhav, possible means sambhav. Okay, तो underline कर लीजिए possible पे. And students, your next word is childish. Okay, here the meaning of childish that बचकाना, बच्चों सा. Okay, so student, we can see in this word childish, the smaller word is child. Okay, child means बच्चा, childish means बचकाना. Clear? So students, underline this word child. Okay, it's a smaller word in this word childish. Okay, इस word में ये जो word है child है, इसमें जो smaller word है child, वो क्या है? child है. Clear? Your next word is unhappy. Unhappy means ऑपरेशन या ऑपरेशन या खुश. ओके, इट्स मीन जो खुश ना हो. ऑपरेशन या दुखी बोल सकते. हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मीन्स दुखी. ओके, जो ऑपरेशन ना हो, खुश ना हो. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी कैन से दिस वर्ड अनहैप्पी. योर स्मॉलर वर्ड इज हैप्पी. क्लियर? हैप्पी मीन्स खुश. सो स्टूडेंट, अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. Your next word is darkness. Darkness means अंधेरा. So student, we can say this word darkness. Your smaller word is dark. Dark means अंधेरा. ओके, डार्कनेस मीन्स होता है अंधकार. ओके, एंड डार्क मीन्स अंधेरा. क्लियर? सो स्टूडेंट, अंडरलाइन कर लीजिए डार्क पे. डार्क मीन्स अंधेरा, डार्कनेस मीन्स अंधकार. तो डार्क इज अ स्मॉलर वर्ड इन दिस वर्ड डार्कनेस. क्लियर? लेट्स सी योर नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्प्लीट. ओके, इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा. ओके, जो पूरा ना हो. सो स्टूडेंट्स, the smaller word in this word incomplete is complete. Complete means पूरा. Okay, so students, underline below this word complete. Complete means पूरा. Clear? Complete is a smaller word in this word incomplete. Clear? Your next word is mighty. Mighty means शक्तिमान या पराक्रमी. Okay, so students, the smaller word in this word mighty is might. Okay, might means शक्ति या पराक्रम. So students, underline below this word might. Okay, might means शक्ति या पराक्रम. Okay, so in the given words, in these given words, your smaller words are like king, possible, child, happy, dark, complete, might. Okay, let's see that. We see that by adding a letter or a group of letters at the beginning or the end of a word, we can form a new word. Okay, it's mean we see means हम देखते. That means कि by adding a letter, एक लेटर को ऐड करके, एक अक्षर को जोड़कर, और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स या एक अक्षरों के समूह को ओके जोड़कर, एट द बिगनिंग शुरुआत में, और एट द एंड या अंत में, ऑफ अ वर्ड एक वर्ड के, एक शब्द के, वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड. हम एक न्यू वर्ड को क्रिएट करते, हम एक नया वर्ड बनाते. ओके, वी सी दैट बाय एडिंग अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ अ वर्ड, वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड. इट्स मीन हम देखते हैं कि एक लेटर को, एक अक्षर को, या अ ग्रुप ऑफ लेटर्स या एक अक्षरों के समूह को
एक शब्द के शुरुआत में या अंत में जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं। ओके, हम देखते हैं कि एक अक्षर या अक्षरों के एक समूह को एक शब्द के शुरुआत में या अंत में जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं। क्लियर? जैसे हमने डिसलाइक, हमारा जो वर्ड, जो हमारा डिस था ना, हमने क्या, सॉरी, हमारा ये जो वर्ड होगा वो लाइक होगा, हमने इसमें डिस को ऐड किया तो डिसलाइक हो गया। ओके, किंग हमारा एक वर्ड था, हमने इसमें डम को ऐड कर दिया तो किंगडम हो गया। क्लियर? तो डिसलाइक जो वर्ड था इसमें हमने सबसे पहले क्या ऐड किया है, फर्स्ट वर्ड ऐड किया है डिस। ओके, इसकी बिगनिंग में ऐड किया। और जो किंगडम वर्ड है हमारा, इसमें हमने डम को ऐड किया है और हमने वर्ड के एंड में ऐड किया, वर्ड के एंड में ऐड किया हुआ है। क्लियर? सो हम क्या करते हैं, एक शब्द को या एक अक्षरों के समूह को एक शब्द के शुरुआत में अंत में जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। क्लियर? लेट्स सी definition of prefix and suffix. The letter or the group of letters that is added at the beginning of a word is known as a prefix. For example, this, and are prefixes. Okay, the letter or the group of letters, अक्षर या अक्षरों का समूह, that is added. Okay, जुड़ता है at the beginning of a word, एक वर्ड के बिगनिंग में, एक शब्द की शुरुआत में, इट्स नोन एज अ prefix, एक prefix के रूप में जाना जाता है। ओके, इट्स मीन किसी शब्द के आरंभ में जो अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है, ओके, उसे उपसर्ग कहते, उसे prefix कहते। prefix मीन्स उपसर्ग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए डिस, इम एंड अन आर prefixes। ओके, तो डिस है द मीन ऑफ डिस, डिस मीन्स डिस्टेंस होता है, सब्ट्रैक्टिव, अपार्ट या अवे। ओके, so and mean of im is not या opposite. Okay, and the mean of un is not या opposite. Clear? तो ये हमारे क्या, डिस, इम और एन, ये हमारे prefixes है, उपसर्ग है। ओके, लेट्स सी definition of suffix. The letter or the group of letters that is added at the end of a word is known as a suffix. The letter means अक्षर, और मीन्स या द ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का एक समूह, दैट इज एडेड, जो जोड़ा जाता है एट द एंड, अंत में, ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के, एक शब्द के, इज नोन एज अ सफिक्स, एक सफिक्स के रूप में जाना जाता है, एक प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। इट्स मीन कि किसी शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। ओके, किसी शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। ओके, so students, let's see example of suffix. Your example is, for example, it's mean, उदाहरण के लिए, dom, is, ish, its and ness are suffixes. Okay, dom क्या है आपका, suffix है। we can say in this second number word था ना, तो हमारा वर्ड था king. Okay, king means राजा, हमने क्या किया, dom को ऐड कर दिया था ना, तो एक न्यू वर्ड क्रिएट किया था। ओके, तो dom इट्स अ सफिक्स, एक सफिक्स है। इस ish, इच एंड नेस, ओके, हमारे सफिक्स है। डॉम मीन्स, स्टूडेंट, हियर द मीन ऑफ डॉम, डॉम मीन्स होता है, the meaning of dom is condition or state, and the meaning of is ish, it mean होता है a little. Okay, and ness means, here the meaning of ness means होता है state, condition, quality को शो करता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड, ओके, इट्स मीन ऐसे लेटर या लेटरों का समूह। ओके, अक्षर या अक्षरों के समूह में जब किसी शब्द की बिगनिंग में हम कोई लेटर या लेटर का एक ग्रुप ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, इट्स मीन किसी शब्द के आरंभ में जो अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है, ओके, उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। एंड किसी शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। इट्स मीन जो वर्ड के बिगनिंग में ऐड होकर एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं उन्हें प्रीफिक्स बोलते हैं। ओके, और जो वर्ड के एंड में ऐड होकर एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड डेफिनेशन ऑफ बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आपको दोनों प्रीफिक्स एंड सफिक्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी, यही आशा करती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ए। ओके, सो लिसन, लुक एट दिस एक्सरसाइज ए। योर एक्सरसाइज इज मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अ सुटेबल प्रीफिक्स फ्रॉम द बॉक्स टू ईच ऑफ द वर्ड्स लिस्टेड बिलो। ओके, मेक न्यू वर्ड्स, नए शब्द बनाइए बाय एडिंग, ऐड करके आ सुटेबल प्रीफिक्स, एक सुटेबल प्रीफिक्स, एक उपयुक्त उपसर्ग, फ्रॉम द बॉक्स मीन्स बॉक्स से, टू ईच ऑफ द वर्ड्स, प्रत्येक शब्द के लिए, लिस्टेड बिलो, जो नीचे सूचीबद्ध। ओके, इट्स मीन नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक शब्द के लिए बॉक्स में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ओके, नीचे सूचीबद्ध शब्दों में उपयुक्त, नीचे सूचीबद्ध शब्दों, ओके, नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक शब्दों में बॉक्स से उपयुक्त प्रीफिक्स लेकर, उपयुक्त उपसर्ग लेकर, उपयुक्त उपसर्ग को लेकर उन्हें जोड़कर नए शब्द बनाइए। ओके, नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक शब्द के लिए बॉक्स में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ओके, क्या करना है हमें, जो
बॉक्स में जो हमें प्रफिक्स दिए हुए इन, दिस, इम, अन, एर, नॉट, इनको क्या करके हमें वर्ड के बिगनिंग में ऐड करके, वर्ड के शुरुआत में ऐड करके हमें नए वर्ड्स क्रिएट करने। ओके, आपकी एक्सरसाइज ये है कि नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक शब्द के लिए बॉक्स से उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ओके, सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज डू, DO, डू मीन्स करना। ओके, डू मीन्स कर. And students, the correct prefix, the suitable prefix which can be add in this first number word is un, un, un. Okay, so students, write down here un in this first number blank, un, un. Okay, un means होते ना. Okay, and then your word become undo, un, do, do, undo. Undo means इट्स मीन होता है अन किया करना, किए हुए कार्य को नष्ट करना. अगर आपने कोई वर्क किया, ओके, डू, एंड अब आपने उसमें अन को ऐड कर दिया, क्या हो गया, अनडू. इट्स मीन किए हुए कार्य को नष्ट करना. ओके, सो लेट्स सी. सो जैसे स्टूडेंट्स, हम लोग मोबाइल पे ही अगर कोई चीज़ सिलेक्ट करते डिलीट करिए. ओके, और फिर अगर हम लोग उस पर अनडू अगर ऑप्शन आता है, ओके, तो अनडू पे अगर क्लिक कर देते तो वो डिलीट नहीं होता है ना, तो वही होता है अनडू. अनडू मीन्स होता है कि हुए कार्य को नष्ट करना. ओके, अन किया करना. ओके, so student, your next word is regular. Regular means नियमित. Okay, नियमित. And student, the correct prefix, the suitable prefix which can be write down here, which can be add with this second number word regular is ir, ir, ir. Okay, so students, take out this prefix ir from the box and write down ir in your second number blank, and then your it means students होता है ir, it means होता है a. Okay, and then your word become irregular, IRREGULAR, irregular. Irregular means अनियमित. Clear? So students, रेगुलर मीन्स था नियमित एंड इरेगुलर मीन्स क्या हो गया, अनियमित. लेट्स सी थर्ड नंबर वर्ड. थर्ड नंबर वर्ड इज सेंस, SENS. सेंस मीन्स, या द मीनिंग ऑफ सेंस मीन्स समझ, ज्ञान. ओके, द करेक्ट prefix, the suitable prefix which can be write down here in this third number blank is none, none. Okay, so students, take out none from the box and write down none in this third number blank, and then your word become nonsense. Okay, sense means क्या था, समझ या ज्ञान, and non means क्या होता है, ना. Okay, एंड जब स्टूडेंट्स आपका वर्ड बना नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स होते हैं बकवास, ना समझ या निरर्थक. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड. योर नेक्स्ट वर्ड इज पेशेंट, PATIENT, पेशेंट. ओके, सो स्टूडेंट, पेशेंट मीन मरीज भी होता है, एंड पेशेंट मीन्स होता है धैर्य रखने वाला, धीर या धैर्यवान. ओके, so the correct the suitable prefix which can be write down here in this 4 number blank, which can be add with the 4 number blank. Okay, which can be add in the beginning of 4 number word patient is im, I am im. Okay, so students, the mean of im का mean क्या होता है, या the mean of im means होता है कि I am im, it means होता है कि ओके, तो इट्स मीन हो गया कि पेशेंट मीन्स था धैर्यवान या धीर रखने वाला. ओके, एंड यहाँ इम्पेशेंट जब हमारा वर्ड क्रिएट हो गया, जब हमने इम को ऐड किया तो हो गया इसका मतलब बेशब्द या बेताब. ओके, बेशब्द या बेताब, या जो धैर्य ना रखने वाला. क्लियर? सो स्टूडेंट, टर्न पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द पेज नंबर 13 एंड लेट्स सी 5 नंबर वर्ड. ये 5 नंबर वर्ड इज अपॉइंट. अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना. ओके, and students, the correct the suitable prefix which can be add with with this fifth number word is this. I said this. Okay, so students, write down this in this blank, and then your word become disappoint. Disappoint means निराश. Okay, disappoint means होते निराश करना. Clear? Let's see your next 6th number word is sensitive. Sensitive means students संवेदनशील. Okay, and students, the correct suitable prefix which can be add and the beginning of this given word sensitive is in, in means okay, and then our sentence become insensitive. Insensitive means संवेदनशील या शून्य. Okay, so students, we have solved this exercise A, and I hope you must have understood this exercise A. Now we are going to read and solve exercise A. Answer the following questions of chapter 3 in our Fair English Language notebook. Your exercise A is answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Your first number question is what is a prefix? एक प्रफिक्स क्या है, एक उपसर्ग क्या. द लेटर और द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज अ प्रफिक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस, इम, इन, अन, एर, नॉन आर प्रफिक्सेस. ओके, इट्स मीन अक्षर या अक्षरों का एक समूह जो शब्द की शुरुआत में जोड़ा जाता है, प्रफिक्स के रूप में जाना जाता है, उपसर्ग के रूप में जाना जाता है. ओके, वी कैन टू से दैट किसी शब्द के आरंभ में जो अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे प्रफिक्स कहते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस. ओके, तो स्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. दिस मीन्स होता है सेपरेट एंड अपार्ट, अवे. ओके, तो दिस का मीन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, अवे, अपार्ट. एंड नेक्स्ट प्रफिक्स इज इम, एंड द मीन ऑफ इम इज not opposite. Okay, and your next prefix is in, and the meaning of in is
not opposite. Okay, and next word is in, sorry, ir, ir, and the meaning of ir is also not opposite. Okay, and your next prefix is non, and when non means not या opposite. Okay, non का meaning क्या होता है? not या opposite. तो आपके जो words है, जो prefixes हैं, दिस, इम, इन, अन, एर, नॉन, ये सारे क्या प्रफिक्सेस है, उपसर्ग है. क्लियर. सो एस किसी शब्द के वर्ड, किसी शब्द है, कोई वर्ड है, उसके बिगनिंग में, उसकी शुरुआत में जो लेटर या लेटर का जो ग्रुप ऐड किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रफिक्स. ओके, इट्स मीन किसी शब्द के आरंभ में जो अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है उसी प्रफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं. आपके प्रफिक्स क्या होते हैं? दिस, इम, इन, अन, एर, नॉन. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सफिक्स. सफिक्स क्या है? ओके, इट्स मीन प्रत्यय क्या है. ओके, सो स्टूडेंट्स योर सेकंड आंसर इज द लेटर और द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज नोन एज अ सफिक्स. ये जो सफिक्स होते हैं प्रफिक्स का अपोजिट होता है. हम प्रफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड के बिगनिंग में ऐड होते हैं, शुरुआत में ऐड होते हैं. सफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड के एंड में ऐड होते हैं, वर्ड के लास्ट में, उनके अंत में ऐड होते हैं. ओके, तो इट्स मीन द लेटर मीन्स अच्छा और मीन्स या द ग्रुप्स ऑफ लेटर, इट्स मीन द ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट्स मीन अक्षरों का एक समूह. ओके, दैट मीन्स जो इज एडेड मीन्स जोड़ा जाता है, एट दी एंड मीन्स अंत में, ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के. ओके, एक शब्द के, इज नोन एज अ सफिक्स, एक सफिक्स के रूप में जाना जाता है, एक प्रत्यय के रूप में जाना जाता है. ओके, सो इट्स मीन किसी शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है, ओके, उसे प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय के रूप में जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल डॉम, इज, नेस. ओके, नेस एंड नेक्स्ट है फाई, एफ वाई फाई, नेक्स्ट आई ई एन, आई ओ एन. ओके, अस, ओ यू एस, अस, नेक्स्ट एक्सन, नेक्स्ट लाई. ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपके क्या है? सफिक्स है. डॉम, इज, नेस, फाई, आई एन, आयोन, आउस. ओके, एक्शन, लाई आर सफिक्सेस. ये आपके जितने भी वर्ड्स है, डी ओम, डॉम. ओके, एंड नेक्स्ट है आई सेट इज. ओके, नेस ये आपके क्या है? सफिक्सेस है. तो डॉम मीनिंग, द मीनिंग ऑफ डॉम इज कंडीशन और स्टेट को शो करता है. तो नेक्स्ट सफिक्स इज इज, आई सेट इज. ओके, एंड द मीनिंग ऑफ इज, आई सेट इज मीन्स होता है आलिटिल, एंड योर नेक्स्ट सफिक्स इज नेस, एंड ई डबल एस, नेस इट्स मीन होता है क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन. ओके, एंड योर नेक्स्ट सफिक्स इज आई एन. ओके, आई एन. सो आई एन मीनिंग होता है अ प्रोसेस, स्टेट. ओके, and result, and your next word is ion, ion. Okay, and the meaning of ion is a process, state or result, and your next suffix is us, ous, us, and the meaning of us is full of, and your next suffix is action, act, and action, and the meaning of action is an action or state. Okay, and your last suffix is lie, ly, lie. Okay, lie it mean हो गया in a manner. Okay, so आपके जो जितने भी वर्ड्स है ना, ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं, अब सफिक्स बहुत होते हैं. ओके, डॉम, इज, नेस, फाई, आयन, आयोन, अस, एंड एक्शन, लाई आपके क्या सफिक्स है, क्या है? प्रत्यय हैं. क्लियर. So student, we have read both question answer of this exercise A, and I hope you must have no problem in any answer of this exercise A of chapter 3. You have must understood this exercise A. Okay, so student, today's classwork is that complete exercise A of chapter 3, and in your English language book constant, and after students note down exercise answer the following questions of this chapter 3 in your fair English language notebook. So today's classwork and student homework is that learn exercise A, which on page number 12 of chapter 3 from your English language book cornerstone, and after students also learn exercise answer the following questions of this chapter 3 from your fair English language notebook. It's a 2 days homework. आज आपका homework है. ओके, सिस्टर आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज ए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक में कंप्लीट करनी है. ओके, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है. ओके, एंड स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज ए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे नोट डाउन करनी है. क्लियर. एंड ये आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज ए बुक में कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज ए नोटबुक में नोट डाउन करनी है. एंड आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज ए अपनी बुक से लर्न करनी है, एंड एक्सरसाइज ए अपनी आपको जो क्वेश्चन आंसर है आपको फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से नोट डाउन करनी है. ओके, आपको एक्सरसाइज ए को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से लर्न करनी है. क्लियर. नोट डाउन आप क्लास वर्क में करेंगे. क्लियर. सो स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास वर्क एंड होमवर्क. सो और स्टूडेंट, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज ए विच पेज नंबर 12 of chapter 3 in your English language book, and after students note down exercise answer the following question of chapter 3 in your fair English language notebook and send me over here. Thank you.